مہربان قدردان صاحبان ہوشیار جج صاحبہ تشریف لا رہی ہیں. Sit down. عدالت کی کاروائی شروع کی جائے. مدعی نمبر 1 حاضر ہو. جج صاحبہ، میں ایک انجینئر ہوں. بڑی محنت اور قربانی کے بعد ہم نے یہ ڈگریاں حاصل کی ہے. پہلے لوگ گھاس بھوس کے کچے مکان میں رہا کرتے تھے اور آج ہماری وجہ سے بڑے بڑے اونچے عمارتوں، بلڈنگ اور بنگلوں میں رہتے ہیں. چین سکون کی زندگی گزار رہے ہیں. لوگوں کی سہولت میں اصل مددگار ذریعہ میں ہی ہوں. اس لیے میلارڈ عزت کی کرسی مجھے دی جائے. Your case is pending. You can go. Next. مدعی نمبر 2 حاضر ہو. میلارڈ، میں ایک پولیس ہوں اور میں ڈے نائٹ اپنے ملک اور ملک کے عوام کے لیے ڈیوٹی کرتا ہوں. راتوں کی نیند حرام کر کے گنڈا موالی، چوری چماری کرنے والوں کو پکڑتا ہوں. یہی رات میں اپنی جان کو خطرے میں ڈال کر بڑے بڑے مجرموں کو پکڑتا ہوں اور حوالات میں بند کر دیتا ہوں. اپنے تدبیر سے آتنکی مافیاؤں کے چھکے چھڑا دیتا ہوں. یہی نہیں بلکہ اپنے ملک کی حفاظت کے لیے دشمنوں سے لڑتے ہوئے شہید ہو جاتا ہوں. جج صاحبہ، عزت کی کرسی تو مجھے ملنی چاہیے. جج صاحبہ، ملنی ہی چاہیے. Your claim is under consideration. Now you can go. Next. مدعی نمبر 3 حاضر ہو. جج صاحبہ، میں ایک ڈاکٹر ہوں. رات دن کی محنت اور پڑھائی کے بعد ہمیں یہ ڈگری ملی ہے. میلارڈ، میں انسانی صحت و زندگی کی محافظ ہوں. میری وجہ سے بیماروں کو شفا ملتی ہے، چاہے بیماری کتنی ہی بڑی کیوں نہ ہو. جج صاحبہ، آج بھائی کو بھائی پر بھروسہ نہیں لیکن مجھ پر بھروسہ کرتے ہیں کیونکہ میں ڈاکٹر ہوں. میری نگربانی میں لوگ صحت یاب ہوتے ہیں. یہی نہیں میلارڈ، رات کی نیند اور دن کا سکون پیشنٹ کو بچانے میں ہی قربان کر دیتی ہوں. مریضوں کو آرام دینے کے لیے میں خود کے آرام کو ترس جاتی ہوں. اس لیے جج صاحبہ، عزت کی کرسی ہمیں ملنی چاہیے. ہاں، ہمیں ملنی چاہیے. Your case is under judge. Now you can go. اگلے مدعی کو بلائیے. مدعی نمبر 4 حاضر ہو. میلارڈ، میں ایک وکیل ہوں. میں بے قصوروں کو انصاف اور مجرموں کو سزا دلواتا ہوں. لوگوں کے مقدمات پر گہرائی سے سنجیدہ نظر رکھتا ہوں. سچ اور جھوٹ کا پردہ فاش کرتا ہوں. یہاں تک پہنچنے کے لیے ہم نے موٹی موٹی کتابیں پڑھی ہے، دن رات ایک کی ہے. جج صاحبہ، یہی نہیں بلکہ بسا اوقات اپنی زندگی داؤ پر لگا کر بڑے بڑے آتنکی فسادی کو سزا دلواتا ہوں. اس لیے میلارڈ، عزت کی کرسی ہمیں ملنی چاہیے. Your argument is strong. Will be considered. Next. مدعی نمبر 5 حاضر ہو. جج صاحبہ، میں ایک سائنسداں ہوں. بڑی بڑی قربانیوں کے بعد میں اس مقام تک پہنچی ہوں. نہایت لگن کے ساتھ کیسی کیسی چیزوں کی میں کھوج کرتی ہوں، پھر لوگوں کو دیتی ہوں جس سے دنیا دنگ ہے اور ہماری قابلیت کا سکہ چلتا ہے. کار، بس، ٹرین، ہیلی کاپٹر، جہاز، ہم نے ہی تو اپنی کھوج اور محنت سے اس دنیا کو دیا ہے. میلارڈ، ڈاکٹر کے گلے میں لٹکتا آلہ اور آپ کے سامنے رکھا کمپیوٹر، لیپ ٹاپ ہم نے ہی تو بنایا ہے. یہی نہیں جج صاحبہ، دشمنوں کے مقابل بم، بارود، میزائل بھی تو ہم نے ہی تیار کیا ہے.
टॉप 10 दीगर आर्म्स हमारी काबिलियत और कुर्बानी की देन है। मिलॉर्ड, गोया हमारी वजह से हर तरफ रंगीनी व हरियाली है, इसलिए जज साहिबा, अदब, एहतराम, इज्जत का मकाम और कुर्सी हमें मिलनी चाहिए। मिलॉर्ड, हमें मिलनी चाहिए। Your argument is strong, will be considered. Next. मुद्दाई नंबर 6 हाजिर हो। अदालत की तौहीन पर भारी जुर्माना आयद किया जा सकता है। माई बाप, मेरे माई बाप, मैं एक किसान हूँ। मैं सुबह सूरज निकलने से पहले खेत खलियानों में जाता हूँ। मौसम चाहे जाड़े का हो, गर्मी का हो या बरसात का हो, मैं अपनी जान पर खेल कर धरती का सीना फाड़ कर उसमें से अनाज उगाता हूँ। हमारा उगाया हुआ गल्ला लोगों के घर घर जाकर लोगों की जिंदगी को आरामदा बनाता है। ऊ काला कोट वाला, ऊ खाकी वर्दी वाला, ऊ सफेद डॉक्टर, ये सब हमारा अनाज खाकर ही तो जीते हैं। अगर हम अनाज ना उगाए तो क्या जी पाएंगे? अब यहाँ ये इज्जत की कुर्सी मांग रहे हैं, अदब एहतराम की जगह मांग रहे हैं। इज्जत की कुर्सी हमें मिलनी चाहिए, माई बाप मिलनी ही चाहिए। आपकी बातों पर गौर किया जा रहा है, तशरीफ रखिए। नेक्स्ट। मुद्दाई नंबर 6, मुद्दाई नंबर 7 हाजिर हो। जज साहिबा, मैं एक उस्ताद हूँ, टीचर हूँ। मी लॉर्ड, इन लोगों ने अपनी इज्जत की कुर्सी के लिए जितनी भी दलील दी है मुमकिन है सही हो, मगर जज साहिबा मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि ये तमाम लोग माँ के पेट से ही काबिल और बड़ी डिग्री लेकर दुनिया में आए थे, या ये कि उस्ताद ने उन्हें मेहनत व मोहब्बत से पढ़ना लिखना सिखाकर तालीम के जेवर से आरास्ता किया, फिर किसी को डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, पुलिस और न जाने क्या क्या बनाकर आवाम के सामने पेश किया। मी लॉर्ड, कोई कैसे उस्ताद के बगैर अपनी जिंदगी सजा सवार सकता है? माफ करेंगी जज साहिबा, माफ करेंगी। आज आप जिस कुर्सी पर बैठकर इंसाफ की देवी बनी है, ये भी तो किसी उस्ताद की मरहूने मिन्नत है और उस्ताद की देन है। इसीलिए कहती हूँ जज साहिबा के ये मकाम इज्जत और मनसब शराफत हमें दी जाए, हमें दी जाए। योर आर्ग्यूमेंट इज स्ट्रॉन्ग, विल बी कंसिडर्ड। तमाम दलीलों और सबूतों के बाद अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि मकाम इज्जत और शराफत की कुर्सी। जज साहिबा ठहरिए। ठहरिए, आप कौन हैं और क्या कहना है? हम वालिदैन हैं। जो भी कहना है कटघरे में आकर कहिए। जज साहिबा, मेरी बातें गौर से सुनी जाएं। वालिदैन ने अपने तमाम अरमान और जज्बात व ख्वाहिशात को अपने बच्चों के लिए कुर्बान नहीं किया। रात की नींद और दिन के सुकून, यहाँ तक कि अपने वजूद को नीलाम करके इन बच्चों की सहूलत के लिए निछावर नहीं किया। जज साहिबा, हम वालिदैन ने ही अपना सब कुछ लुटा कर इन्हें डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, पुलिस वगैरह बनाया है, लेकिन जज साहिबा हमें क्या मिला? रुसवाई, बेसहारापन। जवाब दीजिए जज साहिबा, जवाब दीजिए। जज साहिबा, आपका फैसला हमें मंजूर होगा, मगर ये बताइए, खून पसीने की कमाई को इन बच्चों पर इन्वेस्ट करके ही तो ऊंची ऊंची डिग्रियां दिलवाई है, और आज हमें छोड़कर इस मकामे इज्जत की कुर्सी मांग रहे हैं। गौर कीजिए जज साहिबा, गौर कीजिए। जज साहिबा, याद कीजिए, इस नन्हे से पौधे को अपने खून से सींचकर इसलिए सवारा और कलाकार बनाया था कि हमें छोड़ के खुद को इज्जत की जाह मांगे। फैसला सुनाएं जज साहिबा, फैसला सुनाएं। अच्छा हुआ जज साहिबा, बहुत अच्छा हुआ कि हमारे वालिदैन ने हमें मोटी मोटी किताबें नहीं पढ़वाई और ना ही ऊंची ऊंची डिग्रियां दिलवाई। ये ऊंची डिग्री हासिल करने वाले शायद ये भूल गए हैं कि आज हम जो ये सवाल कर रहे हैं, कल उनके बच्चे खुद उनसे पूछेंगे। आज जिस तरह ये बच्चे मुझे छोड़कर इज्जत की तलाश में हैं, कल उनके बच्चे खुद उन्हें छोड़कर चले जाएंगे। Very emotional scene.
Very emotional scene. जवाब दीजिए जज साहिबा, जवाब दीजिए। बचपन में उंगली पकड़ाते वक्त ये नसीहत दी थी कि जिस तरह आज तुम्हें सहारा दिया है, कल तुम उनका सहारा बन जाना। शायद इसी अमल से अल्लाह करीम दीन और दुनिया नवाज दे। बस यही कहना चाहती हूँ जज साहिबा, बस यही। बहुत दर्दनाक सीन है, बहुत बढ़िया, ताली दीजिए एक, बहुत जबरदस्त। बस कीजिए, चुप हो जाइए। यहाँ रोने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि ये लोग कल भी नादान थे और आज भी नादान है। जो कुछ हमारे पास था हम इन्हें देते रहे, सिखाते रहे, लेकिन अब जो कुछ भी बच जाएगा इनकी औलाद इन्हें सिखा देगी। और हाँ जज साहिबा, ये अदालत इन आधी अधूरी डिग्री हासिल करने वालों को इज्जत का मकाम और कुर्सी देना चाहती है। हंसी आती है जज साहिबा, मुझे हंसी आती है। ये लोग कल भी सहारे के लिए उंगली मांग रहे थे और आज भी सहारे के लिए कुर्सी मांग रहे हैं। फैसला सुनाए जज साहिबा, फैसला सुनाए। Very emotional scene. तमाम दलीलों और सबूतों को मद्देनजर रखते हुए अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि इज्जत का मकाम माँ बाप को दिया जाए। वहीं ये बात भी सच है कि दुनिया में इज्जत और रुतबा के लायक संवारने वाली जात उस्ताद की है। लिहाजा अदालत अपना आखिरी फैसला सुनाती है कि वालिदैन और उस्ताद को मकाम इज्जत और मनसब शराफत की कुर्सी अभी दी जाए। दिस इज लास्ट डिसीजन, द केस इज ओवर। बहुत बढ़िया, चलो बेटा। माँ बाप के खिदमत में जन्नत की बशारत है, माँ बाप के खिदमत में जन्नत की बशारत है, उस्ताद की खिदमत में एजाज व करामत है, उस्ताद की खिदमत में एजाज व करामत है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व एक बरकातहू। मिनट। पेश रू है पेशवा है तू ही है मेरा इमाम, पेश रू है पेशवा है तू ही है मेरा इमाम। उस्ताद मोहतरम तेरी अजमत तेरी रिफ़अत को सलाम, इल्म हिकमत के आलम बरदार हैं आप, काफ़िले हयात के सालार हैं आप। हर ज़माने में जहालत के खिलाफ हर घड़ी बरसरे पैकार हैं आप। उस्ताद मोहतरम आपकी रिफ़ात आपकी अज़मत को सलाम। अब सलाम कर दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।